السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 29 سورت الملک، آیت نمبر 16 آنورڈز، تلاوت ہوگی 15 سے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ کائنڈلی شیئر دی اسکرین۔ ہم پڑھ رہے سورت الملک، آیت نمبر 15 تک ہم پڑھ چکے۔ آیت 12، 13، 14، 15 میں ہم نے کیا کیا پڑھے؟ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ان لوگوں کو جو خشوع کرتے ہیں اللہ کا، جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے۔ دیٹ مینس
وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. That means they are so conscious and so much aware of Allah Ta'ala کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں بھی آتے ہیں پھر بھی کوئی غلط کام، کوئی گناہ، کوئی نافرمانی کرتے وقت اللہ کا خوف ہوتا ہے دل میں کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. کیا یہ لوگوں کے پریزنس میں ہی ہوتا ہے یا تنہائی میں بھی ہوتا ہے؟ That is my question. کہ اللہ کا خشوع لوگوں کے سامنے ہی ہوتا ہے، کراؤڈ میں ہوتا ہے، یا اکیلے میں بھی ہوتا ہے؟ اکیلے میں باجی. ہاں، تنہائی میں جو گناہ کرنے سے بچ گیا اسی کا خشوع اور اسی کا تقوی صحیح معنوں میں تقوی ہے. اگر لوگوں سے ڈر کر ہم کوئی گناہ کرنے سے بچ رہے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، تو پھر وہ لوگوں کا تقوی ہے، لوگوں کا ڈر ہے، اللہ کا نہیں. So we'll have to check ourselves in isolation. جہاں کسی کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے پھر بھی اللہ کے خوف سے کسی نافرمانی کے کام کو نہیں کرتی، اور اکیلے میں بھی اللہ کی کمپلیٹ اوبیڈینس اس سے جی نہیں چراتی. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ مغفرت ہے، بغیر معافی مانگے ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے. بیکاز دے آر ٹرائنگ ٹو بی ویری کانشیس آف اللہ، اور ان کے لیے زبردست ثواب جنت ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے جن 7 شخص کو اللہ اپنے عرش کا سایہ اس دن دے گا جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جسے کوئی خوبصورت، حسن اور مال والی عورت زناکاری کی طرف بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اس میں بھی کیا ہو گیا کہ لالچ پورا ہے، لیکن موقع بھی مل رہا ہے، لیکن وہ انسان کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کا خشوع اور ان کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ پرائیویٹلی ہو یا پبلک بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل، کون سے نبی کا ایگزامپل ہے یہاں پر؟ یوسف علیہ السلام. ویری گڈ. یوسف علیہ السلام اور وہ جو اس کی مالکن تھی، ان دونوں کے علاوہ تو اور کوئی نہیں تھا وہاں پر، تو دس واز ان پرائیویٹ. لیکن آج ہم سب کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، اور اس پر پورن دیکھنا، اس پر نیوڈیٹی دیکھنا، شیم لیسنس دیکھنا، یہ پرائیویٹ میٹر ہے یا پبلک میٹر؟ بتاؤ. ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے نا، تو اس پر چوز کرنا ٹو سی پورن اور نیوڈیٹی اور شیم لیسنس، تو یہ پرائیویٹ میٹر ہے یا پبلک میٹر ہے؟ پرائیویٹ ہے باجی. ہاں، تو اب یہاں پر اپنے آپ کو اس سے روکنا کتنا بڑا کام ہے. تو جو اس چیز کو چوز کرے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی دس، ان اسپائٹ کہ وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے آ جائے اور آپ اسے ہٹا دو، ہے نا، تو یہ لیول پر پہنچنا بھی خشوع اور تقوی ہے. اور ایسے لوگوں کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ اللہ کرے کہ نصیب ہو. ٹھیک ہے. دوسرا، ہم نے ابھی صدقے کی جب آیتیں پڑھے تھے تو کیا دیکھے تھے کہ جو رائٹ ہینڈ سے صدقہ کرے اور اس کے لیفٹ ہینڈ کو بھی پتہ نہ چلے، ان کے لیے ہوگا. رائٹ. اور ایک ہمیں جو ملتا ہے کہ جو تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اللہ اکبر. تو کیا یہ ہمارے لیے، کیا ہم اس لیول پر پہنچے ہیں یا نہیں؟ we have to check ourselves انشاءاللہ.
صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرماتے تھے کہ جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم کیسے ہوتے ہیں؟ بالکل ہمارے دلوں کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ بہت ہی تقویٰ ہائے، خشوع ہائے. لیکن وہ ہماری کنڈیشن سیم نہیں رہتی جب ہم آپ کی محفل سے نکل جاتے ہیں. جب ہم پرائیویٹلی اپنی لائف میں ہوتے ہیں تو وی آر ناٹ ایٹ دا سیم لیول آف کانشیسنیس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا پتہ ہے کسی کو؟ یہی تو ایمان ہے نا بس. یہی تو ایمان ہے. اور اگر تم میرے ایبسنس میں بھی اتنا ہی خشوع محسوس کرتے ہو، تقویٰ محسوس کرتے ہو، تو پھر یہ تو کون سی صفت ہو گئی؟ فرشتوں کی صفت ہو گئی. بٹ ہم انسان ہیں نا. سو دس از، یہی تمہارا ایمان ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ رب کے ساتھ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اپنے رب کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ ظاہر اور باطن، یعنی اندر اور باہر اللہ ہی کو رب مانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، خوشخبری دے دی کہ یہ تمہارا نفاق نہیں ہے، اس میں منافقت نہیں ہے. اندر اور باہر تم اپنے اللہ کو ہی اپنا رب مانتے ہو، اور بھلے کبھی ایمان اور تقویٰ کا لیول ہائی ہو، کبھی لو ہو. کبھی ہم ایسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا کتنا ہائی ہو جاتا ہے تقویٰ کا لیول، اور جب اکیلے میں اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں یا مارکیٹ پلیس میں چلے جاتے ہیں تو تقویٰ اور خشوع کم ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ نفاق نہیں ہے، یہ منافقت نہیں ہے، یہ ہم انسان ہیں، اسی وجہ سے اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے رہتے. پھر ابھی ہم نے زمین کے بارے میں پڑھے تھے کہ تم زمین میں چلو پھرو، محنت کرو، ایفرٹس ڈالو. اس کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے، مسند احمد کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ کی ذات پر پورا پورا بھروسہ کرو، لکھ لیجئے اس حدیث کو، اگر تم اللہ کی ذات پر پورا پورا بھروسہ کرو تو وہ تمہیں اس طرح روزیاں دے، تو وہ تمہیں اس طرح روزیاں دے جیسے پرندوں کو دے رہا ہے، برڈز کو دے رہا ہے، کہ اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور پیٹ بھرے واپس جاتے ہیں. حدیث اوور. تو یہاں پر ہمیں کیا ملتا ہے کہ ان کا صبح شام آنا جانا، رزق کو تلاش کرنا بھی توکل میں داخل سمجھا گیا، کیونکہ وہ کوشش کر رہے ہیں، پھر اللہ ان کی اس کوشش کو آسان کر دیتا ہے. الحمدللہ. اور یہ اس چیز میں بھی آتا ہے کہ جیسے ہم لوگ کوشش کرتے رہے ایمان کے لیے بھی، روزی کے لیے بھی، تقویٰ کے لیے بھی، پھر ایک دن قیامت کے دن اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اللہ will give you all the rewards انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلو، آسمان کا ذکر ہو گیا تھا، پھر زمین کا ذکر ہو گیا تھا کہ زمین میں گھومو پھرو، کوشش کرو، اور جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ. تو کھانے کے لیے اللہ نے کبھی بھی منع نہیں کیا ہے. کھاؤ پیو اور کیا کرو؟ کوشش کرو. اب آگے دیکھتے ہیں اس میں کہ ہم اللہ کا رزق تو کھاتے رہتے، تلاش بھی کرتے ہیں، لیکن 2 things we have to check. نمبر 1 نہیں 3 things we have to check. نمبر 1 کیا وہ حلال ہے؟ نمبر 2 کیا ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ اور نمبر 3 کیا ہم اس رزق کو اللہ کے بندوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ کیا کیا 3 چیزیں کرنے کی؟ جلدی بتاؤ.
बाजी हलाल खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, और क्या वो चीज जो अल्लाह ने नवाजी उसको अब उसके बंदे के साथ शेयर किया। शेयर किया। वेरी नंबर 2 शुक्र, नंबर 3 शेयरिंग। ये सब क्यों करना है? क्योंकि इस आयत में जो वर्ड मिला हमको, कुलू मिर रिस्क ही, रिस्क ही, अल्लाह का रिस्क है, ये तुम्हारा नहीं है। और इस जमीन में से अल्लाह चाहता है तो वो उगाता है हमारे लिए। आपकी और मेरी मर्जी नहीं चलेगी। आप बेस्ट टाइप के सीड्स लेकर आओ और उगाओ, अल्लाह नहीं चाहे तो वो नहीं उगेगा। और इसी जमीन को अल्लाह ने कैसी कैपेसिटी दिया है कि उसमें से इतनी वैरायटी ऑफ प्रोविजंस निकलता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, हर मखलूक के लिए अल्लाह ने पैदा किए, फॉर एवरी क्रिएशन। और फिर उसमें से कुछ जानवर जो हलाल है वो इसी रिस्क में से खाते हैं, और उनको भी हमारे लिए हलाल किया गया। दैट मीन्स अल्लाह ने हमारे खाने पीने, नीड्स और वांट्स का तो ख्याल रख दिया। उसके लिए मेरे लिए जमीन बनाई, मेरे लिए आसमान बनाया, और फिर मेरे लिए हिदायत का भी इंतजाम किया। फिर वो इलैहिन नुशूर, और फाइनली लौटना तो उसी के पास है। जब लौटना अल्लाह के पास है तो फिर मुझे इन सारी नेमतों में अल्लाह की बात माननी है, उसके इंस्ट्रक्शंस, डूज एंड डोंट्स मानने हैं। कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कोई आप समझो कभी किसी गवर्नमेंट ऐसे ऑफिस में गए हो, फॉर एग्जांपल टू मीट द किंग और टू मीट द प्राइम मिनिस्टर, तो उनका प्रोटोकॉल होता है कि नहीं होता है? और उस प्रोटोकॉल को अगर फॉलो ना किया जाए तो क्या आपको अलाउ करेंगे मिलने के लिए? अगर आपके पास समझो कोई वेपन है, विल यू बी एबल टू गो एंड मीट द किंग और द क्वीन? विल यू बी अलाउड? नो बाजी। नेवर। और आपके हाथ में आप बनाना खा रहे हो, और बनाना खाते खाते आप जा रहे हो मिलने के लिए, विल यू बी अलाउड? नो बाजी, नेवर। नेवर। तो हमारे हमारे पास अल्लाह ने हमें सब कुछ दे दिया है फ्री ऑफ चार्ज, और उसके बाद बस कुछ डूज एंड डोंट्स एंड कुछ लॉज एंड लेजिस्लेशंस दे दिए हैं, कमांडमेंट्स। तो जब अल्लाह ही के पास लौट कर जाना है और कोई चॉइस ही नहीं है, तो उसके बाद भी अगर हम अपनी ही मर्जी चलाते रहेंगे, अगर हम अपनी मर्जी चलाते रहेंगे तो कैसे चलेगा? आई एम जस्ट पॉजिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। आयत नंबर 16। अब अल्लाह ताला हमें वार्निंग्स दे रहे हैं। अल्लाह ताला हमें सिर्फ वार्निंग्स दे रहे हैं नेक्स्ट आयत में, आयत 16 में। अमिन तुम, there is little disturbance, we'll just pause for a few minutes. आयत नंबर 16।
अमिनतुम, अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चंस शुरू हो रहे हैं यहाँ से, और मोस्ट ऑफ द आयत में अब हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और जब अल्लाह ताला क्वेश्चन करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए कि क्या पूछ रहे अल्लाह ताला हमसे, बिकॉज जो क्वेश्चंस कुरान में किए जा रहे हैं ना, तो यही क्वेश्चंस कयामत के दिन भी होंगे हमसे। अब अल्लाह ताला क्या पूछ रहे हैं? अमिन तुम, इज क्या, क्या, अमिन अमन में आ गए, बेफिक्र हो गए, तुम यानी तुम, क्या बेफिक्र हो गए तुम? आर यू एट पीस? क्या सोचकर? मन जो, फिस समाई जो कुछ आसमान में है, अन के, यखसिफ कि वो धसा दे, कि वो धसा दे, दबा दे, बिकुमुल अर्द साथ तुम्हारे, अल अर्द जमीन को, फइज़ा फिर अचानक जब, ही तमूर वो लहराने लगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे आयत में कि लोगों के कुफ्र और उनके शिर्क की वजह से अगर तुम पर कभी आसमान से अजाब आ जाए, कभी आसमान से अल्लाह ताला अजाब भेजते, यानी जो रहमतें हैं, बारिश, हवा, हाँ, और अल्लाह की रहमत कुरान की वही। अब इसके ऑपोजिट अगर वही बारिश जो रहमत है तुम पर तूफानी बारिश, सुनामीज भेज दे अल्लाह, तो फिर वही बारिश जो रहमत थी वो अजाब की शक्ल में आ सकती है। तो तुम जो ये नाफरमानियां, कुफ्र और शिर्क करते हो, इसकी वजह से अगर ये रहमत तुम पर जहमत बन जाए, अजाब बन जाए, तो क्या करोगे? क्या तुम इतने बेफिक्र हो गए हो कि कुछ नहीं होगा? अगर ये जो हवाएं चल रही है वो हवाएं साइक्लोन की सूरत में आ जाए, यानी वही रहमत फिर से जहमत बन जाए, तो हु विल सेव यू? कौन बचाएगा तुमको? या तुम बेफिक्र हो गए हो? नंबर 3, ये जो वही इलाही आ रही है जिसे तुम लाइटली लेते हो, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो अल्लाह के ऑर्डर्स को, तो फिर वही इलाही के बदले अगर अजाब का ऑर्डर दे दे अल्लाह, यानी इंस्टेड ऑफ रहमत फिर से जहमत अल्लाह ताला के हुक्म से नाजिल कर दी जाए, तो बचकर कहाँ जाओगे? दैट इज द क्वेश्चन। तो क्या तुम अब इतने बेफिक्र हो गए हो, इतना लाइटली लेते हो अल्लाह के कुदरत को, उसके ऑर्डर्स को, कि तुम नहीं मानते अल्लाह की बात? तो एनीथिंग इज पॉसिबल, अल्लाह के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, कि वो बाबरकत जात है, उसके हाथ में पूरा मुल्क है, वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कादिर है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अल्लाह। सो ऑल दीज blessings can turn into azab, punishment. तो तुम बेखौफ मत हो जाओ, अल्लाह की ब्लेसिंग्स को, रहमतों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते। अब यही आसमान और यही जमीन तुम्हारे लिए रहमत थी, ब्लेसिंग थी, उसमें से अल्लाह ने तुम्हारे लिए इनको बनाया और इसी में से तुम्हारे लिए हर फायदा दे दिया। अब यही आसमान तुम पर अजाब, पनिशमेंट या तूफान ला सकता है, और यही जमीन तुमको धसा सकती है जब वो लहराने लगे। दैट मीन्स द अर्थक्वेक। आज तुम इस जमीन में कितना सेफ फील करते हो, अचानक से जमीन हिलने लगे अल्लाह के हुक्म से, और अर्थक्वेक हो जाए और तुम्हें उसी में धसा दिया जाए। हैव यू नॉट सीन टॉल बिल्डिंग्स? और अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है, वो जितने फ्लोरिड बिल्डिंग्स है सब खटाखट खटाखट एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं और जमीन के अंदर एक दूसरे के बोझ के तले धस जाते हैं और बर्बादी और तबाही के सिवा कुछ नजर
نہیں آتا. Why? This is all because of your own bad deeds. سب سے بڑے bad deed گناہ کیا ہے؟ کفر اور شرک. تو اگر اللہ تمہیں اپنی برائیوں پر پکڑ لے، تمہاری پکڑ ہو جائے اچانک سے، تو اس زمین پر کسی کو باقی نہ چھوڑے، کوئی نہ بچ سکے. کل ہم پڑھ رہے تھے سورت الشمس میں کہ کیسے سمود کی پوری قوم نے سپورٹ کیا اس ایک بدبخت کو، تو پوری قوم کو اللہ نے ایک ساتھ ختم کر دیا تھا. لیکن آج اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے کیا دعا کی اللہ سے کہ اللہ میری پوری امت کو ایک ساتھ تباہ برباد نہ کرنا، پوری امت پر ایک ساتھ کوئی عذاب نازل نہ کرنا. 1 سیکنڈ. ہاں، پھر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مہلت دیا ہوا ہے. کیا آپ اور میں نہیں کرتے کوئی کفر، کوئی شرک، کوئی گناہ؟ لیکن اللہ کا کتنا احسان ہے کہ گناہ کرتے ہی وہ ہمیں پکڑتا نہیں اسی وقت، بلکہ وہ ہمیں مہلت دیے ہوئے. تو اس مہلت کا ہمیں کیسے فائدہ اٹھانا ہے، جلدی بتاؤ. باجی توبہ کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے. توبہ اور اصلاح، 2 ورڈ سوریا نے بولے. اور کسی کے پاس کوئی جواب ہے؟ نہیں ہے. سوریا نے توبہ اور اصلاح بولی، اور کیا کریں گے ہم؟ جو چانس ملا ہے نا آج، کیا کسی نے گناہ نہیں کیا؟ ہم نے کل گناہ نہیں کیے تھے، ہماری پکڑ نہیں ہوئی نا ابھی تک. نہیں. nobody else. فاطمہ، خدیجہ، ثنا، شمیم، تبسم. السلام علیکم. معافی وعلیکم مانگ کے اور شکر ادا کر کے کہ اللہ سے اوکے. اور کوئی؟ باجی استغفار کریں گے. استغفار کریں گے. ویری گڈ. اچھا کشور، استغفار کا مطلب کیا ہے؟ جی ہمیں وہ اعمال واپس ہمیں اسے سدھارنا ہے. we don't have to repeat it again. ویری گڈ. پر کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ nobody is wrong. ایک منٹ. ہاں تھوڑا سا ڈسٹربنس ہے، میں باہر ہوں اینڈ دیر آر مینی پیپل اراؤنڈ. تھوڑی دیر میں نے ان لوگ کو چپ کرایا تھا بٹ ہاں سو ناؤ دے آر گون. ہاں تو دیکھیے یہ آپ سب کے جواب صحیح ہے کہ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، اس کا شکر ہے. ابھی تک موت بھی نہیں آئی ہے اور نہ قیامت آئی ہے الحمدللہ. تو بٹ وی آر ٹیکنگ دس سو لائٹلی. یہ جو کویشچن کیا اللہ نے، تو ہمیں دیکھیے جب بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کویشچن کرتے ہیں نا، ہمیں بہت زیادہ الرٹ ہو جانا ہے کہ ہماری آنکھ، کان، دماغ کھل جانے چاہیے جب اللہ تعالیٰ کویشچن کرتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں سب کہ ہم کو استغفار بھی کرنا ہے، توبہ بھی کرنی ہے، کریکشن بھی کرنی ہے، بٹ آر وی ڈوئنگ؟ تو ایوری آیت آ کر اٹ شوڈ بی سچ اے ریمائنڈر کہ وہ جھنجھوڑ دے مجھے اور آپ کو، اور پھر ہم سدھرنے لگے. سو استغفار ہم کرتے ہیں
कि अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। इस्तगफार होता है पिछले गुनाहों का, फॉर माई पास्ट, जो भी मैं पास्ट में कर चुकी या आज मैं कुछ कर चुकी, उसके लिए हम कहते हैं अल्लाह तू माफ कर दे। और फिर तौबा किसके लिए होती है कि अल्लाह आज के बाद मैं वापस उसे नहीं करूंगी, तो वो फ्यूचर के लिए प्रॉमिस होता है। तौबा का मतलब है प्रॉमिस, अल्लाह से वादा करना कि अल्लाह आज के बाद मैं वापस इस गुनाह को नहीं करूंगी, तेरी नाफरमानी आज के बाद नहीं करूंगी, आई विल स्टॉप सिनिंग इन द सेम वे। तो तौबा फ्यूचर के लिए प्रॉमिस होती है। अब ये दोनों हो गया, अभी तीसरा है इस्लाह। इस्लाह मीन्स करेक्शन। सो नाउ यू विल हैव टू चेंज योर वेज, कि अल्लाह मैं झूठ बोल रही थी, अब नहीं बोल रही हूँ, अब नहीं बोलूंगी, तो मैं क्या बोलूंगी, फिर सच बोलूंगी, है ना। गीबत कर रही थी तो अब गीबत नहीं करूंगी और चुप रहूंगी। जो लोग गीबत करते हैं मैं उनसे भी दूर हो जाऊंगी, बिकॉज गीबत करना और सुनना दोनों ही उसमें शामिल हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। और शिर्क कर रही थी, वो धागे बांधना, गले में तावीज पहनना और ऐसी जगहों पर जाकर अल्लाह के सिवा किसी और से मांगना, किसी और के नाम पे ज़बाह करना, ये सब शिर्क में शामिल है। फिर एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर अपना फ्यूचर जानना, अल्लाह अब ये सब मैं नहीं करूंगी जो भी मैं किया करती थी। एंड कॉन्शियस एफर्ट डालना है इसमें ना करने में, वरना अगर आज नहीं आया है अजाब और आज पकड़ नहीं हुई है तो हमें पता है वह इलैहि नुशूर, अल्लाह ही के पास लौटना है और फिर पकड़ से कोई बचा नहीं सकेगा। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला जो पूछ रहे हैं कि क्या तुम अमन में आ गए हो, यानी निडर हो गए, यानी इतने तुम अल्लाह से ज्यादा स्ट्रांग हो गए, अपने आप को कोई चीज समझने लगे हो। तो देखो वो सूरह शम्स में उसने जो काट डाली थी कुचिया, क्या वैसा बन गए हो, अबू जहल के जैसे बन गए हो, अबू लहब के जैसे बन गए हो, फिरौन के जैसे बनना चाहते हो? तो इन सब का हशर देख लो, कुरान में अल्लाह ने हमें बता दिया है। ओके, तो ये कयामत के दिन तुम जान जाओगे कि मेरी धमकियां और डराने को न मानने का अंजाम क्या होता है। जब अल्लाह के पास लौटोगे तब देख लोगे कि अल्लाह ने तुम्हें खूब वार्निंग्स दे दी, रसूल ने खूब वार्निंग्स दे दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर भी तुम नहीं माने, तो फिर फाइनल अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम जिंदा है, पढ़ रहे हैं, तो आज ही सुधरेंगे। वो जो हमने पढ़े थे कि वो वहां जाकर पछताएंगे, काश कि हमने सुन लिया होता, काश कि हमने अकल का इस्तेमाल किया होता। ये सारी आयतें अब वही डायरेक्शन में हमें आज करेक्शन की तरफ लेकर जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। चले फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट आयत में क्या है। आयत नंबर 17। क्या अमीन तुम, देखिए फिर से क्वेश्चन आ रहा है, क्या फिर से बेफिक्र हो गए तुम, अमन में आ गए तुम? आर यू एट पीस? मन जो कोई फिस समाई आसमान में है, हाँ, क्या तुम उससे बेखौफ हो जो आसमान में है? कौन है आसमान में? किसकी बात हो रही है, किससे बेखौफ हो गए? अल्लाह सुब्हान तआला से। अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये पूरे मुल्क का बादशाह, वो जो आसमान में है, क्या तुम उससे बेखौफ हो गए हो? अन के युरसिल अलैकुम, कि वो भेजे तुम पर। युरसिल में रसूल वर्ड है, रसूल का मतलब ही भेजा हुआ, तो जो कि वो भेजे तुम पर हासिबा, क्या भेजे तुम पर? पत्थरों की बारिश, पत्थरों की आंधी। क्या समझते हो कि अल्लाह ताला ओले बरसाते हैं, बारिश बरसाते हैं, ठंडी ठंडी हवा दे रहे हैं, कुरान भी नाजिल हो रहा है आसमान से अल्लाह के हुक्म से, ये सारी रहमतें हैं।
लेकिन क्या तुम भूल गए हो कि अल्लाह को नाराज करोगे तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं कि वो आसमान से पत्थरों की बारिश भेजे। कौन सी कौम पर हुई थी पत्थरों की बारिश अजाब की शक्ल में? कौम आद पर। अल्लाह ताला फरमा रहे फसतअलमूना, फिर बहुत जल्द तुम इल्म हासिल कर लोगे। फ यानी क्या होता है? फिर। देखिए इसका ब्रेकअप देखिए, फ का मतलब फिर, स का मतलब बहुत जल्द, वेरी सून, त यानी तुम, फिर क्या बचा? आइन लाम मीम, इल्म। फिर बहुत जल्द तुम इल्म हासिल कर लोगे यानी जान जाओगे। इसका ब्रेकअप कौन करके बताएगा? फसतअलमूना, फ का मतलब फिर फिर सीन, स का मतलब जल्दी, त यानी, तुम, फिर क्या बचा? आइन लाम मीम, इल्म। फिर बहुत जल्द तुम इल्म हासिल कर लोगे, जान जाओगे। कैफ नज़ीर, कैफ यानी कैसा था, नज़ीर खबर, और नज़ीरी है रा के नीचे जेर, यानी कैसा था मेरा खबरदार करना, कैसी थी मेरी वार्निंग, कैसा था मेरा डराना। बहुत जल्दी तुम समझ जाओगे जब ये पत्थरों की बारिश पड़ेगी। अब हम कहेंगे कि हमने तो कभी पत्थरों की बारिश नहीं देखी, तो इफ यू डोंट टेक इट इन द लिटरल सेंस, तो इसके अलावा अभी जो कोरोना आया था, कभी कोई पैंडेमिक्स आते हैं, कभी कोई ऐसी बीमारी आती है, कभी कोई मुसीबत आती है हम पर, और वो मुसीबत इतनी सख्त होती है, इतनी डिफिकल्ट होती है, तो कोई भी चीज जो सख्त है, हार्ड है, डिफिकल्ट है, उसे आप पत्थर ही समझ लीजिए, और आप उससे बच भी नहीं सकते हो, और उससे उसको रोक भी नहीं सकते हो, और उसका इलाज भी जल्दी नहीं मिलता है। तो ये पत्थरों वाला अजाब नहीं तो और क्या है? कैन यू इमेजिन? कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स? एक एक वर्ड में, एक एक वर्ड में कुछ एग्जांपल दे सकते हो? बाजी अभी टर्की में जो हुआ हाँ, अर्थक्वेक, वेरी गुड। और कोई? जल्दी जल्दी एग्जांपल्स दो। अभी मैंने आप लोग को बोली बीमारियां, तकलीफें, मुसीबत, तो एक एक वर्ड में दे दो जल्दी जल्दी एग्जांपल्स। फातिमा इज राइट। और कोई एग्जांपल? खदीजा, सना, शमीम, सुरैया, तबस्सुम, डॉक्टर शबाना, एनीबॉडी एल्स? हसीना, नसरीन? बाजी कोविड। कोविड भी बोल दिया, वेरी गुड। और बाजी अभी जो ट्रेन का हादसा हुआ है उड़ीसा में। हाँ, सही है। और ना उसको रोक पाए, ना ना उसकी कोई वार्निंग मिली थी, राइट? और बड़ी बड़ी ही क्यों, छोटी छोटी तकलीफें भी जो आती है वो भी बहुत डिफिकल्ट होती है, हमें नहीं पता है। सो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम बेखौफ ना हो जाओ कि तुम नाफरमानियां करते रहोगे और तुम सेफ रहोगे। कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और फिर बहुत जल्द तुम समझ जाओगे कि अल्लाह का डरावा कैसा था जब उस मुसीबत में पड़ जाओगे, जब अजाब आ जाएगा। एक तो है दुनिया का अजाब, ये छोटी मोटी आजमाइश है, और अल्लाह ने फरमाया है मैं देख रहा हूँ कि कौन तुम में से बेहतरीन अमल करता है, कि इस मुसीबत के वक्त भी पॉजिटिव रहे, सब्र करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे, और इस मुसीबत के वक्त भी जमे रहे ईमान पर, तकवा पर, शिर्क में मुब्तला ना हो। हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चा बीमार है ना, अभी बच्चे के लिए तो कुछ भी करेंगे, तो फिर किसी ने कहा कि वो बाबा के पास चले जाओ, तो वो उसका नींबू, डोरे, धागे, पता नहीं क्या क्या, सोचते मेरे बच्चे के जान से बढ़कर नहीं है। पड़ोसी ने कहा कि हम गए थे, हमको बहुत फायदा हो गया, तो हम लोग भी बच्चे के लिए भागते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये सारी टेस्ट होती है उस आजमाइश के वक्त कि क्या हम कितने जमे रहते हैं ईमान पर,
मुसीबत के वक्त कहीं शिर्क में तो नहीं पड़ते। और सबसे बड़ी वार्निंग हमें दे दी गई कयामत के दिन और जहन्नम के अजाब को देखकर बहुत जल्द तुम समझ जाओगे कैसा था अल्लाह का डराना। फिर भी नहीं डरे, फिर भी वार्निंग नहीं ली, खबरदार नहीं हुए, तो अल्लाह ने अपना काम कर दिया, रसूल ने अपना काम कर दिया। उसके बाद यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। आयत 18, वलकद कज़्ज़बल्लज़ीना, और बेशक, कज़्ज़ब झुटलाया, अल्लज़ीना उन लोगों ने, मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले कई लोगों ने, कई कौमों ने झुटलाया। किसको झुटलाया वो तो बताया ही नहीं अल्लाह ने। किसको झुटलाया? अल्लाह को झुटलाया, अल्लाह के रसूलों को झुटलाया, अल्लाह की किताबों को झुटलाया और अल्लाह की निशानियों को झुटलाया, है ना। तो फकैफ कान नकीर, फिर कैसा था मेरा अजाब, हाउ वाज माय पनिशमेंट। टॉपसी टर्वे कर दिया, कई बस्तियों को औंधा मुंह गिरा दिया, कहीं पर अर्थक्वेक आया, कहीं पे पत्थरों की बारिश आई, कहीं पे पानी का सैलाब आया, फिरौन एंड कंपनी को समंदर में डुबो दिया, अबू जहल को 2 छोटे बच्चों के हाथों मरवा दिया, अबू लहब का ये हाल हुआ कि उसकी अपनी औलाद उसको कब्र में नहीं डाल सके, उसका कफन दफन नहीं कर सके, वो कीड़ों में इस तरह की बीमारी लगी कि नोबडी कुड टच हिम। तो अल्लाह ताला पूछ रहे हमसे, फकैफ कान नकीर, फिर बताओ कैसा था मेरा अजाब, कैसी थी मेरी पनिशमेंट। व्हाई? बिकॉज कज़्ज़ब झुटलाया। झुटलाने का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ, देन वी आर मूविंग अहेड। नहीं मानना बाजी उसको, और उसकी उनकी बात भी नहीं मानना। और क्यों? रसूलों को सताना। झुटलाने का मतलब नहीं मानना होता है क्या? दैट इज रॉन्ग। बाजी हक को गलत बोलना, सच को गलत बोलना झुटलाना होता है। हाँ देखिए, गलत बोलना है, देखिए ये है एक कि रसूल आए, हर जमाने में रसूल आए और उन्होंने अल्लाह का पैगाम लाकर पहुंचाया, बराबर। तो जिसने भी झुटलाया, अब ये वर्ड को लिख लीजिए आप, कज़्ज़ब का मतलब क्या है, झुटलाने का मतलब जब कोई मैसेज मिलता है ना आपको, तो 2 चीजें होती है, एक तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, सुन लेते हो, या दूसरा आप एक्सेप्ट नहीं करते। आप बोलोगे कि मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती, हो सकता है आप सच बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो, बट मैं नहीं मानती, आई डोंट वांट टू लिसन, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट। ठीक है, ये है क्या करना, ये है कुफ्र करना, इनकार करना। यू गॉट इट सुरैया? डिफरेंस देख लो आज आपको, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आकर कि अल्लाह सिर्फ एक है और अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत मत करो। तो जो ईमान वाले लोग थे वो लोग मान गए और उन्होंने सुन भी लिया और अमल भी कर लिया, तो वो मोमिन बन गए। और जो लोग बोले कि भाई हम नहीं मानते आपकी बात को, अल्लाह एक है, हमारे पास तो लात है, मनात है, उज्जा है, कितने सारे देवता है, तो हम तो सिर्फ अल्लाह को नहीं उनको भी मानेंगे, सो वी डोंट वांट टू लिसन टू यू, वी विल नॉट ओबे। तो ये हो गया कुफ्र, ओके, नहीं मानना। लेकिन कज़्ज़ब का मतलब होता है कि वो कहते हैं कि तुम झूठे हो। एक होता है कि तुम हो सकता है तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, बट हमको नहीं मानना है। लेकिन कज़्ज़ब का मतलब होता है कि मुझे इसलिए नहीं मानना है क्योंकि तुम झूठे हो, तुम्हारा मैसेज झूठा है, तुम रसूल नहीं हो, तुम्हारा मैसेज झूठा है, अल्लाह सिर्फ एक है, ये भी बात झूठी है, नौजुबिल्लाह। अंडरस्टैंड? तो जो मैसेज लाने वाला है रसूल, उसी के ऊपर सारा इल्जाम डाल दिया कि तुम झूठे हो, वी डोंट बिलीव इन यू, तुम रसूल नहीं हो, तुम क्या हो, शायर हो,
मजनू हो, दीवाने हो, काहिन हो, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये होता है कज़्ज़ब। अभी एक होता है कज़्ज़ब के भी दो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि मैंने किसी ने झुठला के चुप बैठ गया, झुठला दिया और चुप बैठ गया। अभी वो था जो अबू जहल और अबू लहब, आपने पढ़ चुके हो सीरत में कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का मैसेज देने मार्केट प्लेसेस में जाते थे, लोगों को मार्केट में, बाजारों में दावत देते थे इस्लाम की, तो पीछे पीछे कौन जाता था और क्या कहता था, बताओ। अबू जहल जाता था और कहता था कि ये मेरे भतीजे झूठे हैं, और मिट्टी भी फेंकता था ना बाजू में। यस, और अबू लहब भी सेम करता था। तो अभी ये हो गए कज़्ज़ब की खुद ने सिर्फ ये उनको झूठा नहीं बोला, जाकर लोगों को भी कह रहा है कि ये झूठा है, इसकी बात मत मानो। नाउ यू सी, वन वाज फॉर हिमसेल्फ एंड सेकंड वाज फॉर द होल सोसाइटी। तो खुद भी नहीं मानते, झूठा कहते हैं और दूसरों को कन्विंस कर रहे हैं, दूसरों को प्रोपोगंडा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कि ये झूठे हैं, इनकी बात मत मानो। दैट मीन्स दूसरों का भी बवाल इनके ऊपर आ गया। तो ये है, अल्लाह ने फरमाया कि बेशक जिन लोगों ने झुठलाया उनसे पहले भी, तो उनका अजाब तो तुम देख चुके हो, कुरान में पढ़ चुके हो। क्या अभी भी तुम सेम चीज फॉलो करना चाहते हो? तो फिर वेट एंड वॉच, वेट फॉर योर ओन अजाब। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, यहाँ पर आया मेरा अजाब। तो अब ये जो मेरा अजाब वर्ड है नकीरी, मेरा अजाब, तो अल्लाह का जो अजाब है वैसा अजाब कोई कभी किसी को दे ही नहीं सकता। इट इज सो सीवियर, दुनिया में भी नजर आ रहा है ना, सच अ सीवियर पनिशमेंट कि कोई नहीं दे सकता है। चाहे आप आद की कौम का देख लो, समूद का देख लो, चाहे आप नूह अलैहि सलाम की कौम का देख लो, चाहे आप हूद अलैहि सलाम की कौम का, प्लस वो कौन थे होमोसेक्सुअलिटी वाले, इब्राहिम अलैहि सलाम के भतीजे का क्या नाम था? लूत अलैहि लूत अलैहि सलाम, सॉरी आई फॉरगॉट। तो ये सब उन लोगों पर जो अजाब आए थे, ऐसा अजाब कोई दुनिया वाला किसी को दे ही नहीं सकता। ये अजाब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पावर में है, उसकी कुदरत में है कि इतने सीवियर अजाब और पनिशमेंट वो दे। जैसे कोरोना ऑल्सो, पूरी दुनिया थम गई थी, पूरी दुनिया रुक गई और अपने अपने घरों में बैठ गई, तो फिर ऐसा अजाब कोई और ला सकता है? नो बडी कैन डू दैट। इसलिए अल्लाह ने क्वेश्चन किया, फिर कैसा था मेरा अजाब? तो हमें क्या करना है? अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह हमें, हम मानते हैं, हमने जान लिया कुरान से, लेकिन अब हमें तू अपने अजाब से बचा ले, अपने अजाब से, दुनिया के भी अजाब से बचा ले, कब्र के भी अजाब से बचा ले, और जहन्नम के भी अजाब से बचा ले। चाहे जन्नत के लिए दुआ मांगो या ना मांगो, इन तीनों अजाब से बचने की दुआ हमें रोज करनी है इंशाल्लाह। कौन से 3 अजाबों से बचना है बताओ जल्दी जल्दी? कौन से 3 अजाबों से बचना है? लिख लीजिए। नंबर 1 दुनिया का अजाब, नंबर 2 कब्र का अजाब, नंबर 3 जहन्नम का अजाब। इन तीनों से बचने की रोज दुआ मांगनी अल्लाह से। क्या दुआ मांगना इनफ होगा? और क्या करना होगा? अमाल में सुधार लाना है बाजी। हाँ एग्जैक्टली, अमाल में भी सुधार लाना है इंशाल्लाह। चलें आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर 19, अल्लाह ताला फरमाते क्या, फिर से क्वेश्चन आ रहा है, क्या, वो भला, क्या भला, लम नहीं, क्या भला नहीं,
यरो उन्होंने देखा, क्या भला नहीं देखा उन्होंने? इलत्वैरी किसकी तरफ? इला तरफ, अत्वैरी अत्वैर कहते हैं परिंदों को, द बर्ड्स। अब जमीन का एग्जाम्पल हो गया था, आसमान का हो गया था, अब अल्लाह ताला हमें बर्ड्स की तरफ देखने का हुक्म दे रहे कि क्या नहीं देखा उन्होंने बर्ड्स की तरफ, परिंदों को? क्या हम में से कोई ऐसा है जिसने किसी बर्ड को नहीं देखा है? एनीबॉडी? अगर नहीं देखा है तो हाथ ऊपर कर लो। ऐसा हम में कोई भी नहीं होगा जिसने कभी बर्ड्स को नहीं देखा। अल्लाह ताला फरमाते कहाँ होते हैं ये? फौकहुम, उनके ऊपर। बर्ड्स कभी भी हमको हमारे नीचे थोड़ी दिखेंगे, हमारे ऊपर हवा में उड़ते हैं वो। दे आर एरियल क्रिएशन। सौफातियों, पर खोलने वाले। ये बर्ड्स हमारे ऊपर क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने परों को खोल लेते हैं। वयकबिदना, और वो बंद करते हैं अपने परों को। दैट मीन्स वो अपने परों को, अपने फेदर्स को पूरा खोलते हैं और फिर बंद करते हैं। ये इनका खोलना और बंद करना, ये क्या है? इसी की वजह से ये उड़ते हैं आसमान में हमारे ऊपर। मा युमसिकुहुन्ना, मा यानी नहीं, युमसिकु नहीं थामे हुए उनको, युमसिकु हुन्ना नहीं थामे हुए उन बर्ड्स को, इल्ला रहमान, सिवाय अर रहमान के और कोई। अर रहमान बड़ा मेहरबान, वो अल्लाह जिसने अपनी मेहरबानियों से इन बर्ड्स को यूनिक क्रिएशन बनाया, उनको यूनिक फेदर्स दिए, पंख दिए कि इन पंख को वो खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, और उनके खोलने और बंद करने की वजह से वो उड़ते हैं। और उनको कौन हवा में इस तरह इन बिटवीन द एयर कौन थामे हुए है कि ये गिरते नहीं कभी? कौन थामे हुए हैं बताओ? अल्लाह सुब्हान ताला बाजी। आयत में क्या है सना? आयत के हिसाब से आंसर दो। अर्रहमान, अर्रहमान। अर्रहमान बड़ा मेहरबान। ये उसकी मेहरबानी है कि वो जमीन पर नहीं गिरते। क्या हम लोग इस तरह हवा में, बीच हवा में इस तरह फ्लोट कर सकते इन बर्ड्स की तरह? नेवर। इन्नहु बेशक वो अल्लाह, बिकुल्ली शैइन बसीर, इन्ना बेशक, जज़ाकल्लाहु खैरा सुरैया। देखिए कैसे बर्ड्स हवा में तैर रहे हैं, वो गिरते नहीं गिरते। और रहमान ने उनको थामे हुए हैं। क्यों? इन्नहु बेशक वो अल्लाह, वो अर्रहमान, बिकुल्ली शैइन बसीर, हर चीज का देखने वाला है, हर चीज का देखने वाला है। उसकी नजर, उसकी विजन, अल्लाह की विजन है ये अल्लाह की प्लानिंग वाली विजन है कि उसने बर्ड्स को ऐसा स्पेशल बनाया ताकि इन बर्ड्स को देखकर हम क्या सीखे? What is the lesson that you learn from these birds? जल्दी बताओ। हम बाजी ऐसा ऊंचा उड़ना है, अपने पर फैलाना है, यानी हमको कोशिश करते रहना है, अमल करना है, इस्लाह करना है। वेरी और गुड, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। दिस इज वन लेसन कि हमें भी इन बर्ड्स की तरह ऊंचे उड़ना है, अपने परों को फैलाना है, और अर्रहमान की इस खास सिफत जो उसने हमें दी है, जैसे बर्ड्स को ये स्पेशल उड़ने की कैपेसिटी दी है, वैसे हम इंसान को क्या बेस्ट अता किया अल्लाह ने? दिमाग, अकल, इल्म, नॉलेज, तकवा और कुरान बोलने की ताकत, वेरी गुड, और उसको कंटेम्पलेट करने की। और ये कुरान दिया है हमको। अच्छा ये बर्ड्स को उड़ा दिया, लेकिन क्या बर्ड्स के पास कुरान है? नहीं है। बर्ड्स को हिदायत दी कुरान वाली? नहीं दी। तो ये अल्लाह ने जैसे बर्ड्स को स्पेशल बनाया, उड़ने का हुक्म दिया, तो वो उड़ रहे।
अल्लाह के हुक्म से, और हमको अल्लाह ने कुरान दिया, हिदायत दी, तो हम वहाँ नाफरमानियां करते हैं। तो बर्ड से सीखो, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऊंचा उठो, ऊंचा उड़ो, दैट मीन्स एक बहुत अच्छे एक स्कॉलर ने कहा कि जैसे बर्ड्स को अल्लाह ने 2 विंग्स दिए हैं, वैसे एक मोमिन को अल्लाह ने 2 विंग्स दिए, सबर और शुक्र। तो एक मोमिन जब इन दोनों विंग्स को, सबर और शुक्र को ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में इस ब्लेसिंग को ले आता है, जितना ज्यादा सबर और जितना ज्यादा शुक्र करते हैं, उतना वो ऊपर उठते हैं, अल्लाह के करीब होते हैं, उनका ईमान का लेवल राइज होता है, तकवा का भी और खुशू का भी। तो व्हाट आर द 2 विंग्स फॉर मोमिन? सबर और शुक्र। अभी इनको हिलाना है और उड़ना है आगे ऊपर इंशाल्लाह। अल्लाह ने इन बर्ड्स को हवाओं को बर्ड्स के ताबे कर दिया है और ये उड़ते फिरते हैं। यही है अर्रहमान का लुत्फ। अभी जो हम पढ़े थे कि अल्लाह लतीफ है, बारीक बीन है, कि उसने अपनी हर क्रिएशन को बड़े लुत्फ से, बारीकी से, स्पेशल, यूनिक बनाया अपने करम से और अपनी रहमतों से और अपनी नेमतों से। और इन बर्ड्स की हाजतों को, इनकी जरूरतों को अल्लाह अपनी मेहरबानियों से पूरा करता है और उनके बेहतरी का निगरान है। ये जो वर्ड आया है यहाँ पर बसवीर, तो उनकी निगरानी भी करता है, उनका कफील भी है। कफील का मतलब क्या होता है? उर्दू वाले कौन है बताओ? किफालत करने वाला, मीन्स टू टेक केयर। ओके, गार्डियन। गार्डियनशिप। गार्डियन आया ना, तो अल्लाह क्या है? उनका गार्डियन है इन बर्ड्स का जब वो हवा में उड़ते हैं। तो अब देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है। ये बर्ड्स हवा में उड़ते हैं ना, तो 2 चीज होती है। दे हैव टू फाइट अगेंस्ट समथिंग। ऑपोजिशन क्या है उनके लिए? ऑपोजिशन फोर्स जिसको फाइट करना पड़ता है उड़ते वक्त, साइंटिफिकली कोई सोच के बताएगा मुझे? ग्रेविटी बाजी। वेरी गुड। हम जमीन के बारे में पढ़े ना कि जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटेशनल पुल। तो अल्लाह ताला हमें ये जो बर्ड्स का एग्जाम्पल दिए ना, ये हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, कि ये बर्ड्स को जो जमीन उनको खींचती अपनी तरफ, तो उनका एक ऑपोजिशन, उसके अगेंस्ट उनको लड़ना है, उतनी ताकत लगानी है कि वो पुल के खिलाफ एनर्जी यूटिलाइज करे। 1 और दूसरी एनर्जी कहाँ लगती है? कि वो पंखों को हिला हिलाकर हवा में उड़े। ठीक है, अभी ये पंख के अंदर क्या है? बर्ड्स की बॉडी अल्लाह ने बिल्कुल हॉलो बनाई है। उनके जो बोन्स होते हैं, बोन्स, हड्डी, अगर आपने कभी चिकन खाए हो या तीतर या बटेर खाए हो, ये सारे बर्ड्स हलाल है ना हमारे लिए, तो उनके बोन्स अंदर आप चबा कर देखो तो आपको हॉलो लगेंगे बिल्कुल अंदर। तो ये हॉलो बोन्स। और इसके ऑपोजिट आप अगर बकरी का गोश्त खाओ, लैम खाओ, बीफ खाओ, तो उसके बोन्स आप कंपेयर कर लेना अभी थोड़ा सा कॉन्शियसली, तो आपको फर्क नजर आ जाएगा कि हड्डियां अल्लाह ने इन बर्ड्स की हॉलो बनाए हैं, जिसकी वजह से उनके लिए लाइट होना, उड़ना आसान है। दूसरा, इनके जो फेदर्स होते हैं, तो वो फेदर्स आर ऑल्सो सो लाइट, और वो फेदर्स के अंदर क्या होता है जिसकी वजह से वो उड़ सकते हैं? किसी को पता है? अच्छा, अभी आपको एक होमवर्क देती हूँ कि थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए इन बर्ड्स के बारे में, कि why how can the birds fly, why are they so light, and what is the hollow thing inside them. इंशाल्लाह मुकद्दसा मैं पूछती हूँ आपसे 1 मिनट के बाद। और हमें बर्ड्स से क्या क्या लेसन सीखने हैं। और कुछ बर्ड्स होते हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक
या ईस्ट से वेस्ट तक उड़कर जाते हैं सीजन्स के मुताबिक, अपनी जिंदगी में कितना लंबा सफर तय करते हैं हार्श वेदर से बचने के लिए, जिसको कहते हैं माइग्रेटिंग बर्ड्स, और वो कितना लंबा सफर तय करते हैं, दे आर इन फ्लॉक्स टुगेदर। अकेला कोई भी बर्ड इतना लंबा माइग्रेट नहीं कर सकता, तो वो साथ में ग्रुप में माइग्रेटिंग में क्या फायदा है, उसमें वो कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कैसा उन लोगों के अंदर कोऑर्डिनेशन है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह मंडे के दिन, बिकॉज इससे हमें सीखना है कि कैसे एक मुस्लिम उम्मत को एक दूसरे के साथ रहना है, यूनाइटेड वी स्टैंड। तो जब अल्लाह ने एक बर्ड का एग्जाम्पल दे दिया है ना, तो हम उसको बस ऐसे ही पढ़ के नहीं छोड़ देंगे, उसमें से जितने मॉरल्स हमको मिलते हैं, जितने लेसन्स, ताकि उतना हमारे अमल में भी फायदा हो इंशाल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।